ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਲਾਹੌਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੰਮਣ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਭ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਜੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਵੀ ਪੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 84 ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੀ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
लोगों ने इनू एक जिल्द ते कागज ते शाही वेख लिया। बाबा जी बचन करते सी, ओए जेड़ा इस नज़र नाल देखेगा, कह लगे मेरी नज़र नाल देखो, मैनू तो अखर अखर गुरु नानक दिसदा है। बाबा नंद सिंह महाराज, मैनू तो अखर अखर गुरु नानक दिसदा है। ते जेड़ा गुरु नानक है अखर अखर, ते उहदे ते लोग राजनीति पे खेड़ते हैं, राजनीति खेड़ते नहीं बख्शे जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गए जिन्होंने ऐसे किया, खत्म हो गए। पिछे झात मार लो, ते जेड़े हुण इस तरह करते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये तो ज्यों ते त्यों ही रहना है, ये तो ज्यों ते त्यों ही रहना है। तो गुरु नानक के घर का फैलाओ पिछे भी नहीं किसी को जरिया गया, ते अज भी नहीं कोई जरदा पिया, माफ करियो। गुरु नानक के घर दी, गुरु नानक का सच सब छुपान नूं फिरदे पैणे भी ये ना किते जागृत हो जाए। जे जागृत हो गया साडा कख नहीं जे रहना। पर ऐसा करने वाले हो, ध्यान करियो जे रब नाल खेड़ कर रहे हो, रब नाल खेड़ कर रहे हो। बड़ा खतरा तो यह पिया होया है कि 10वें पातशाह लिख गए ने कि मेरे सिख 500 साल राज करनगे। वो खतरा बड़ा पिया होया है कि किवें ना किवें मर्यादा नष्ट करो, किवें ना किवें बाणी च फर्क पाओ, किवें ना किवें इन्हां दी जो चलती रीत है उनके विच रुकावट पा दिओ ताकि ये रुक जान। जो इन्होंने वचन गुरु ने किया होया वो रुकन वाला नहीं, वो रुकन वाला नहीं। इस करके ये मर्यादा विच इस करके फर्क पाए जा रहे हैं। एक तो दुबई में किसी ने 3 बाणियां पढ़ के अमर छका दिता, शायद आप जी ने सुनिया होगा, वेख्या होगा। 3 बाणियां पढ़ के अमर छका दिता। लानत है इहो जे सिखां दे, लानत है साध संगत जीओ। 10वें पातशाह के मार्ग में फर्क पाने वाले हो, लानत है तुहाडे ते। तो मन उत्थे लेके आओ। ये अज तू नहीं, ये पहला तो तुरया रहा है। पंचम पातशाह दे मुरीद साईं मियाँ मीर वर्गे बन गए। खतरा पै गया कि साडे सलामत दा की बनेगा। उस वे बड़ी गल इस। दूसरी, खुसरो ये भी राजे का पुत्र सी, मियाँ मीर का पुत्र सी, ते मियाँ मीर तो ही जहांगीर का पुत्र सी, ते जहांगीर तो बागी हो गया सी खुसरो। उन्हें उनके मगर फौज ला दी। वो डरदा होया छिपदा होया श्री हरमंदर साहब पहुंचा। दूसरा कसूर यह सी, जो खुसरो श्री हरमंदर साहब पहुंचता है तो इतों तो सबनों जी आए आख्या जाता है। हुण इत्थे कोई आ जाए तो उन्होंने प्रसादा ना छकाइए, छकाओगे। कोई आ जाए पानी नहीं पियाओगे, सबनों पियाओगे। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का यह मार्ग है। जो उत्थे आया महाराज ने लंगर भी छकाया और इनू कुछ माया भी दी। इन्हें मंगी फकीर बन के जाचना की भी तुहाडी गोलक गुरु नानक का मुँह है, गरीब का मुँह है तुहाडी गोलक। इस करके मैनू थोड़ी माया की जरूरत है। महाराज ने एक इतिहास, 2 इतिहासकारों ने लिखा, महाराज ने माया भी दी सी उन्हें खुसरो। क्यों दी? उन्हें जाचना की सी। बैठे कोई गरीब आ जाओ जाचना करे तो जरूर उसकी मदद करोगे। गुरु नानक का कर लो। दूसरा इल्जाम ये सी महाराज तुसीं उनकी मदद क्यों की? वो साडे तो बागी सी, मदद क्यों की? तीसरी, तुहाडे गुरु नानक के घर की इन्नी गोलक निकलती है, लाखों रुपया है, उनका टैक्स तारिया जाएगा, टैक्स दिओ उनका। मारे कहते थे गुरु नानक के घर की माया है, संगतां की माया है, ये मुश्किल है। फिर कहते मरनों तैयार हो जाओ। लोग आ गल्लां सी साथ समय, वो गल्लां तो खास नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर चौथा सी चंदू दी लड़की का रिश्ता जो महाराज ने संगत दे कहे थे ठुकरा दिता है। क्यों ठुकराया? उन्हें
गुरु नानक दे घर नूं आख्या सी मोरी, ते अपने घर नूं आख दिता है चबारा। चबारे दी अठ मोरी नूं लाया अपनी कुड़ी बारे उन्हें बोलिया सी। छेवें पातशाह नूं पसंद कर। फिर महाराज ने जो उन्हें गुरु नानक दे घर नूं इस तरह आख्या सी, फिर महाराज ने दिल्ली की संगत बैठी सी ते महाराज ने कहा संगत नूं भी किस तरह किया जाए जिवें संगत की आग्या है। ते संगत ने कहा जी नहीं, एक कसूर चौथा सी। हुण इन्हां कसूरां विच कोई मजबूती है तो दसो। शहीदी हुंदी है महाराज दी, इन्हां च कोई मजबूती है तो दसो। कुछ भी नहीं। ते फिर चंदू नूं गुस्सा सी, दीवान सी, ये फिर कश्मीर नूं चला गया। जदों महाराज नूं ये तसीहे दिते कहने, ये कश्मीर नूं चला गया सी जहांगीर बादशाह, ताकि मेरे ते नाल इल्जाम आ जाए, क्योंकि बड़ा वड्डा कार्य, बड़ा वड्डा, ये कोई छोटा गुनाह सी, ताकि इसे ते सारा कुछ आए, चंदू दीवान ते सारा कुछ थोपिया जाए। ते गल उसे दी सी सारी, हुक्म उसे दे सी सारे है। फिर महाराज नूं तसीहे दिते गए। तत्ती तवी ते फिर देग विच उबाला, फिर तत्ती तवी ते बिठा के फिर रेता, सीस विच गर्म गर्म रेता पड़भुंजा बारिया है, गर्म गर्म कढ़ाई विच कढ़िया होया रेता महाराज के सीस पै रहा है। वह शांति की हद हो गई। साथ संगत की हद करती महाराज ने, शांति की हद कर दी। सिखा तेरे अंदर शांति भी होनी चाहिए। शांति, तेरे अंदर शांति होनी चाहिए। इस शांति के विचों साध संगत जी पर उपकार पैदा होता है। पर उपकार, बहुत बड़ा पर उपकार पैदा। इस शांति के विचों तलवार पैदा हुई। उस तलवार ने फिर जुल्म नहीं किया, जुल्म हटाया है, जुल्म खत्म किया है। इस शांति के विचों तलवार निकली। इस शांति विचों बहुत कुछ प्रगट होया। जो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शांति सी, कमाल है साध संगत जीओ। तपदी लाल लो ते बह जाना, इस तू वड्डी केड़ी शांति है। ते जे चाहे ते एक अख दे फर्क दे नाल धरती समान उड़ा देवे, इन्नी शक्ति रखन वाला ते तत्ती तवी ते बैठा है, उबलदी दे विच उबल रहा है। इस तू वड्डी कोई शांति संसार विच लभ सकदे हो? गर्म रेता शीश विच पै रहा है, इस तू वड्डी कोई शांति संसार विच पहला वेखी है तुसी? ते गांव नूं नहीं वेखोगे मेरे ख्याल विच। इन्नी शांति गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। आखिरकार चौथा दिन होया, महाराज ने इच्छा जगाई, क्योंकि छाले महाराज के शरीर के हो गए, शरीर निर्बल हो गया। शरीर है, अंदरला बल उसी तरह है, पर ये शरीर निर्बल हो गया। शरीर है। फिर कहने लगे असी स्नान चाहते, क्योंकि महाराज ने हुण जान लिया कि हुण अंत हो गया, अंत हो गई है। फिर महाराज ने स्नान की इच्छा जगाई। अखीर ते भाई पुराना ते भाई पैड़ा, इन्हां दोनों सिखा ने महाराज के मोढियां नूं बाहां नूं सहारा दिता। फिर रावी थोड़ी देर थी, थोड़ी दूर ते दरिया सी, उत्थे तक महाराज फिर भी चल के गए ने। अपने हौली हौली कदम पुटते पुटते उत्थे तक चढ़ के गए ने महाराज। फिर सच्चे पातशाह ने इशनान करने तो बाद महाराज ने चौंकड़ा ला लिया ते सिखां नूं कुछ उपदेश दिते भी तुसी हुण इत्थे नहीं रहना। जो पंजो सिख सी भी तुसी हुण श्री अमृतसर साहब जाके साडी शहीदी का ये सारा वरतांत बाबा बुढ़ा जी नूं सारियां संगतां नूं तुसी सुनाना है जाके, जिस तरह होया
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਖੀਰਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, त्यों ज्योति संग जोत समाना, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवन हारे की कौन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, एह तो चलत भया। सच्चे पातशाह नानक लीन अयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। शरीर करके महाराज शरीर त्याग गए, इस दरिया दे विच महाराज लीन हो गए। तो पंजो सिख फिर श्री दरबार साहब श्री अमृत साहब पहुँचते हैं। फिर ये सारा प्रदान जो आप जी ने इतिहास सरवण किया है उतों का एक फिर सिखा ने सारा आन के सुनाया है। इसी तरह अज भी साड़ी झोली विच ये इतिहास है। सतगुरु मेहर करन, किरपा करन, उन्हां दा धीरज, उन्हां दा सत, उन्हां दा संतोख, उन्हां दा ठंडा हिरदा, उन्होंने ततियां तवियां ते भी बैठ के उस मालिक दे गीत गाए। सिखा तुम ही गा, तुम ही उस मालिक नाल हमेशा जोड़। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के गुणां नूं अपने हिरदे अंदर धारण कर। उन्होंने ततियां तवियां ते बैठ के भी इहो ही गीत गाए कि तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ततियां तवियां ते बैठ के भी साध संगत महाराज ने उन्हों का दिहाड़ा सारिया संगतां बड़े प्यार नाल मना रहे हो। तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहन लगे ऐसे गुरु तो मैं कुर्बान जाता हाँ जिन्हां ने उबलदियां दरगाह विच भी उस मालिक दे नालों चित डुलाया नहीं बल्कि जोड़न की जांच दसी है महाराज ने। आओ ये शब्द नूं पढ़ के स्मरण। गुर अर्जन विटु कुर्बानी, गुर अर्जन विटु कुर्बानी, विटु कुर्बानी, गुर अर्जन विटु कुर्बानी, गुर अर्जन विटु कुर्बानी। रहंदे गुर दरिया विच मीन कुली हेत निर्वाण, मीन कुली हेत निर्वाण, हेत निर्वाण। गुर अर्जन विटु कुर्बानी, गुर अर्जन विटु कुर्बानी, विटु कुर्बानी, विटु कुर्बानी।